Good morning all my 5th class students. I hope you all are in healthy state. I am your English teacher Devika. So today we'll begin with the writing section. Students, under writing section today we'll do with the notice writing. So the first question comes to your mind is, what is a notice? Notice होता क्या है? Students, it is a written or printed piece of information targeted for a specific group of people. इसको समझिए स्टूडेंट्स, नोटिस राइटिंग इज जस्ट अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. नोटिस राइटिंग एक तरीके का सिर्फ एक आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को इन अ राइट मैनर इज ऑल अबाउट नोटिस. नोटिस यूजुअली कवर एन इवेंट, एन इनॉग्रेशन, अ फंक्शन और जनरल इंस्ट्रक्शन. इन सब चीज़ों के बारे में हम यूजुअली नोटिस लिखते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल. अ नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. The purpose of a notice is to announce or display information to a specific group of people. As I have told you कि हमारा जो purpose है, the main purpose of a notice is just to give the information to a target group of people. और notice को हम formal language में लिखते हैं. So student, these are the important topics for notice writing. Usually exam में इन्हीं topics में से notice writing आते हैं. A competition you have to write a notice writing for a given competition, an excursion trip, a lost and found notice, an inauguration to take place, an exhibition or a blood donation camp. That these question or these type of topics can be given to you और इसके बारे में आपको notice लिखना होता है. This notice writing usually comes for 4 to 5 marks और आप easily 4 to 5 marks score कर सकते हैं if you follow some key points. So here are the key points. I'll discuss it with you. अगर आप इन key points को और proper format के साथ notice लिखते हैं तो you can easily score full marks in notice writing. So the first one is, do not cross the word limit to avoid deduction of marks. Usually आपको जो prescribed word limit है, जो 50 words की ही around रहती है, उतने ही words लिखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखना, उससे कम नहीं लिखना. Always enclose the notice in a box. Make sure you draw the box with the pencil. स्टूडेंट्स, आपको हमेशा नोटिस को एक बॉक्स में ही लिखना है एंड मेक श्योर दैट यू ड्रॉ द बॉक्स विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ओनली. पेन नहीं यूज़ करना, पेंसिल से ही बॉक्स बनाना है. कीप योर नोटिस शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट. दिस मीन्स कि आपको नोटिस में सिर्फ रेलिवेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही डालनी है, कोई स्टोरी लाइन नहीं लिखनी, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देनी है. डू नॉट मेक एनी हाइपोथेटिकल इन्फॉर्मेशन. डू नॉट मेंशन एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन. दिस मीन्स कि आपको अपने बारे में कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं देनी, दैट आई लाइक दिस और आई वांट दिस. आपको सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है. नोटिस शैल इंक्लूड आंसर्स टू ऑल द 5 W's. So what are the 5 W's? Students, this is the main and the most important part of the notice writing. हमने क्लास 4th में भी करा था. So if you remember correctly कि हमें 5 W's को लेके चलना है जो कि हमारे notice writing में कवर होने चाहिए. And what are those 5 W's? First is this what. What? हमें लिखना क्या है? Regarding what you have to write the notice. Why? Why means reason. क्यों? हमें क्यों ये organize करा रहे हैं? When? When means टाइम. यू हैव टू स्पेसिफाई द टाइम्स कि कब होना है वो फंक्शन. वेयर. वेयर मीन्स कहाँ. यू हैव टू मेंशन द प्लेस और यू कैन ऑल्सो राइट द वेन्यू वर्ड कि वो कहाँ पर होना है. हु, किसके लिए होना है. सो यू हैव टू लर्न दीज 5 W's और आपके नोटिस में ये 5 W's का आंसर अगर आप दे रहे हो, इट मीन्स आपका नोटिस बिल्कुल ठीक है. सो यू हैव टू इंक्लूड द आंसर्स ऑफ दीज 5 W's. आपके नोटिस में ये 5 W's के आंसर मिलने चाहिए. Moving forward, format of the notice. Now comes आपको किस format में notice लिखना है. So this is the format of the notice. Students, listen to me carefully. Firstly, you have to write the name of the organization. सबसे ऊपर आपको name लिखना है अपने organization का. Then comes the notice. This notice should always be in capital letters. आपको capital letters में ही notice लिखना है. Then comes the date of the notice. Notice की date mention करनी है. देन द टाइटल और द हेडलाइन कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं वो आपको टाइटल लिखना है. देन कम्स द बॉडी. आपको अब नोटिस में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है दैट विल कम अंडर द बॉडी. देन कम्स द सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन कि आपको नीचे वो नाम लिखना है कि कौन नोटिस लिख रहा है. डेजिग्नेशन मीन्स द पोस्ट, आप किस पोस्ट पे होके वो नोटिस लिख रहे हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू मेक अ बॉक्स
लाइक दिस इज गिवन इन द फॉर्मेट. ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको एक बॉक्स बनाना है जिसके अंदर नोटिस लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर वन मोर थिंग कि आप ये नोटिस का फॉर्मेट यही फॉलो करोगे. इसके स्पेसिफिकली अलग मार्क्स होते हैं. इफ़ यू आर नॉट राइटिंग द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. इफ़ यू आर नॉट राइटिंग नोटिस योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. There is the separate mark given for this first format, then the marks will be given for body and in the last signature and name. तो इन सब के अलग अलग मार्क्स की बाइफिकेशन है, डिविजन है, तो आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है. Let us take an example. You are a Ravikant, the cultural secretary of Bal Vidya Niketan. Write a notice for your school notice board informing the students about a poetry recitation competition. अब आपका ये क्वेश्चन गिवन है और आपको क्वेश्चन की हेल्प से नोटिस बनाना है. सो द फर्स्ट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बाल विद्या निकेतन आपको दिया हुआ है, वही आपने नाम यूज़ करा. नोटिस विच शुड बी ऑलवेज इन कैपिटल लेटर्स. देन कम्स द डेट. डेट का स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है कि 18 अक्टूबर. देन यू हैव टू पुट द कॉमा. देन कम्स द ईयर. देन द टाइटल और द हेडिंग. हम किसके बारे में लिख रहे हैं तो वो भी हम क्वेश्चन से ही लिखेंगे. That you are writing a notice about the poetry recitation. Then comes the title, poetry recitation competition. Body आ गई अब हमारी. All the students from class 5th to 10th classes are informed that the school is going to organize an inter-school poetry recitation competition. Necessary details are given below. कि सभी स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म करा जा रहा है कि पोइट्री रेसिटेशन कॉम्पिटिशन है. नेसेसरी डिटेल्स आर गिवन बिलो. जो हमने 5 W's करे थे वो आपको इन्फॉर्मेशन इसमें देनी चाहिए. तो आप ये भी लिख सकते हैं दैट द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आर गिवन बिलो. फर्स्ट कम्स द डेट. ठीक है, व्हेन आपने आंसर कर दिया, डेट दे दी. वेन्यू, वेयर का आंसर आपने कर दिया. व्हेन, टाइम. यू आर मैंशनिंग द टाइम ऑल्सो इन द नोटिस. इट मीन्स आपने W सारे कवर कर लिए. फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड इन द लाइब्रेरी ड्यूरिंग रिसेस. लास्ट में आपने नेम मेंशन कर दिया जो कि आपके क्वेश्चन में ही गिवन था. यू आर रविकांत, तो यू हैव टू राइट द नेम एंड द पोस्ट, दैट इज द डेजिग्नेशन. एंड द लास्ट यू हैव टू कीप द नोटिस इन द बॉक्स. हमने इसमें बॉक्स में ही नोटिस डाला है, देखिए, तो आपको बॉक्स बनाना नहीं भूलना. मूविंग फॉरवर्ड लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल. आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो नोटिस का द एग्जैक्ट फॉर्मेट. लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम योर ग्रामर बुक. हम आप ही की ग्रामर की बुक का एक एग्जाम्पल लेते हैं. योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स 25th एनुअल फंक्शन. राइट अ नोटिस to be put up on your school notice board regarding the students' participation in the cultural programs. Write down the notice in a box. So student, ये अभी दूसरा एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपने अगेन नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस, डेट, वही सारा फॉर्मेट आपने फॉलो करें. नाउ यू आर राइटिंग द नोटिस इन अ पैराग्राफ. इट इज़ अप टू यू अगर आपको पैराग्राफ में लिखना है, बट डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड ऑल द W's. सारे W's का आंसर देना नहीं भूलना है. इसको आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऐसे स्टेजेस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. डेट, टाइम, वेन्यू ऐसे भी करके लिख सकते हैं. और यू कैन ऑल्सो राइट इन अ पैराग्राफ फॉर्म. इट इज़ टोटली योर चॉइस. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द नोटिस राइटिंग. एंड इन द लास्ट आई होप आप सबको ये सारी नोटिस राइटिंग का कंप्लीट फॉर्मेट समझ आ गया हो. सो योर होमवर्क विल बी फ्रॉम पेज नंबर 132 ऑफ योर ग्रामर बुक. You have to write a notice, that is question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आप मुझे नोटिस बनाएंगे और जिस तरीके से मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, यू हैव टू फॉलो ऑल दोज पॉइंट्स एंड मेक अ वेरी ब्यूटिफुल नोटिस, शॉर्ट एंड क्रिस्प, एंड इंक्लूड ऑल द W's. Okay, write in your English test copy and WhatsApp it to me. Thank you. Thanks for watching.